Students, today we will discuss the characteristics of ionic compound. So before I start the characteristics of ionic compound, we all know कि जो ionic compounds हैं, they are having ionic bond, just like NaCl. And in the ionic bond, there is a cation and anions which are held together by strong electrostatic force that you have to remember. So I think all of you have clear कि ionic bond क्या होता है. It is particularly a bond in which the cations and anions they are held together by the strong electrostatic force, and compound having the ionic bond are said to be the ionic compounds. So हमें basically आज ionic compound की properties को study करना है. Characteristics we can say. So the first characteristic property is that these ionic compounds, these are non-directional in nature. इनकी जो नेचर होती है बेटा वो नॉन डायरेक्शनल होती है. द मीनिंग ऑफ नॉन डायरेक्शनल इज जस्ट सी आउट. वी नो दैट आयनिक कंपाउंड जो है वो बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है. तो ये जो आपका Na पॉजिटिव आयन है ये किसी भी नेगेटिव आयन के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकता है. Cl नेगेटिव के साथ भी, Br नेगेटिव के साथ भी और I नेगेटिव. सो सिंस any positive ion can attract any negative ion, and similarly we can say कि अगर Cl negative है it can form the ionic compound with Na positive as well as with Ca2 positive as well as with Al3 positive. So यहाँ पर basically क्या है कि कोई भी positive ion किसी भी negative ion को attract कर सकता है. Similarly any negative ion can attract the any positive ion. Therefore we will say that these are non-directional in nature. Means any ion can attract any oppositely charged ion. Clear to all of you? So therefore the nature is said to be, we can say that is non-directional. Second, they show, second property, they show isomorphism. Now what is the meaning of isomorphism? Just see out. I'll give you one example in case of isomorphism. NaF और MgO अगर आप example लेके चलो बेटा, these two compounds NaF and MgO, these compounds have similar constitution. Constitution बिल्कुल similar है. Na and F, Mg and O, one metal, one non-metal, one metal and one non-metal. Clear to all of you? So what is the meaning of isomorphism? Compound having the similar constitution, they will have the similar electronic configuration. Electronic configuration क्या होगी? बिल्कुल similar होगी. Clear to all of you? अब इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं इसी में. यहाँ पर अगर आप Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलो, सो Na पॉजिटिव एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है. Na पॉजिटिव में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, बिल्कुल सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन. सेम यहाँ पर मैग्नीशियम पे जो बेटा +2 चार्ज है, सो Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6. सिमिलर हम नेगेटिव आयन में भी देख सकते हैं. यहाँ पे F नेगेटिव मीन्स 9+1 10 इलेक्ट्रॉन. अगेन द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6. यहाँ ऑक्सीजन पे O-2, सो O-2 मीन्स अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स. कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6. सो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? जिन कंपाउंड्स का सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है दे विल हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एग्जाम्पल इज वेल क्लियर. सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है वही Mg2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है. एंड सिमिलरली जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी F नेगेटिव की है सेम इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 नेगेटिव. सो टू मेन प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करी दैट दीज आयनिक कंपाउंड, दीज आर नंबर वन नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज एनी पॉजिटिव आयन कैन अट्रैक्ट एनी नेगेटिव आयन. सिमिलरली एनी नेगेटिव आयन कैन अट्रैक्ट एनी पॉजिटिव आयन. सेकेंडली वी हैव डिस्कस्ड आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म बिल्कुल क्लियर है. जिन कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर होता है उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको क्या मिलती है? सिमिलर. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड द टू प्रॉपर्टीज. नाउ द नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी.
They are hard crystalline solids with high melting point, boiling point. Very important. Now, first of all, if I will say, suppose हम NaCl का example लें, we will take Na positive and Cl negative. So between Na positive and Cl negative, we are having the strongest electrostatic force of attraction. सो बेटा अगर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं या वी आर से कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी ड्यू टू विच दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड एंड दे विल हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑल थ्री प्रॉपर्टी सिंगल रीजन due to the strong electrostatic forces of attraction. So this is, you can say, the property number 3rd. Next, 4th property is regarding the solubility. These are soluble in polar solvents with high dielectric constant. ध्यान से समझना है, what is the meaning of these terms. For example, water जिसका dielectric constant 82. So what I have written कि these compounds, these are soluble in polar solvents with high dielectric constant. चलिए पहले स्टडी करते हैं पोलर सॉल्वेंट क्या होता है. जस्ट सी आउट. अगर हम वाटर का डिस्कस करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. नो बेटा इस बॉन्ड को देखना है आपको. इस बॉन्ड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H हैज़ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली अगर इस बॉन्ड का डिस्कशन करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो इस सॉल्वेंट पे वी आर हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. सो वो सॉल्वेंट जिसमें आपके पोल्स हो, पोल्स मीन्स यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल से है, ध्यान देना है. कोई भी सॉल्वेंट जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स में एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे, ड्यू टू विच यू विल हैव द पोल्स पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स, दीज सॉल्वेंट आर सेड टू बी द पोलर सॉल्वेंट्स. मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया यहाँ पे. अब सॉल्युबिलिटी से पहले एक चीज और बताऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू ब्रेक द सॉल्यूट पार्टिकल्स. सॉल्यूट पार्टिकल्स को ब्रेक करने की जो एबिलिटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्योंकि जब आपका सॉल्यूट पार्टिकल ब्रेक होगा तभी वो वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. सो वाटर हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 82, मींस इसमें कंपाउंड को ब्रेक करने की जो एबिलिटी है वो कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है. अब इसको चेक करते हैं कैसे. जस्ट सी आउट. सो यहाँ पर हमने वाटर का डायग्राम तो बना लिया बेटा. अगर हम डिस्कशन करें कि NaCl वाटर में कैसे डिसॉल्व होता है, जस्ट सी आउट. दिस इज NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अगर बेटा इसको आप वाटर में ऐड करोगे देन व्हाट हैपन्स, जस्ट सी आउट. वाटर क्या करेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे डिक्रीज करेगा, ड्यू टू विच द NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर. अब ये कैसे करेगा? जस्ट सी आउट. ये बेटा जस्ट सी आउट देखिए, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है. अब वाटर में मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था आपको कि वाटर हैज पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव पोल्स. सो ये नेगेटिव है, सो यहां पर जस्ट लाइक दैट पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल ये. सो ये जो H है ये Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दिस वे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? H positive will attract the Cl negative toward itself. On the other side, this O negative will attract the Na toward itself. So आयनिक कंपाउंड में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू विच इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा एंड दिस कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस आयंस. यहाँ एक्वस का मतलब बेटा वाटर से है.
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो क्यों डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में? बिकॉज पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, दे डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और दिस टेंडेंसी टू डिक्रीज द फोर्स इज सेड टू बी द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो वन लाइन में अगर हम रीजन लिखें यहाँ पर, विल सिंपली राइट द रीजन हियर. आई विल राइट पोलर सॉल्वेंट्स decreases the forces of attraction between positive and negative ions. क्लियर? कैसे डिक्रीज करते हैं वो आपने देख ही लिया. वाटर का जो H पॉजिटिव है, पार्शियल H पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऑन द अदर साइड जो वाटर का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, वो पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर solvent. Now the next fifth property that I will discuss here is regarding their conductivity. Conductivity now. So in the conductivity there are two things. Number one, these are bad conductors in solid state. सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर्स है. रीजन मैं आपको डिस्कस करता हूँ. इफ आई विल से NaCl सॉलिड, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर, ऑल ऑफ यू नो, बैड कंडक्टर हम बात करें ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली कोई भी आयनिक कंपाउंड लीजिए, AlCl3 सॉलिड स्टेट, अगेन इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअली मैं आपको क्लियर करूंगा, ये जो कंडक्शन का काम है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, दिस कंडक्शन ऑफ यू कैन से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज डन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. आपके हीट और करंट को एक पॉइंट A से पॉइंट B तक ट्रेवल करने का काम कौन करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. ये आपके करंट और हीट को यू कैन से ट्रेवल कराते हैं. बट अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, NaCl सॉलिड या AlCl3 सॉलिड, इन द सॉलिड वी नो दैट द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ड्यू टू विच वी कैन से दीज आर बैड कंडक्टर्स. क्योंकि बेटा आयन अगर खुद ही मूव नहीं करेगा तो वो करंट को भी कैरी नहीं करा सकता. सो द मेन रीजन यू हैव टू रिमेंबर दैट इन द सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. नाउ द सेकेंड इज in case of molten or aqueous solutions, in both the conditions these are good conductors of, I will say, heat and electricity. Now what is the meaning of molten state? I'll write NaCl molten. Molten means जो आपका solid NaCl था उसको हमने मेल्ट किया और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज अ मोल्टन स्टेट. मेल्ट भी बोल सकते हो. और आई विल से NaCl aqueous, हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया. इन बोथ द कंडीशन वी आर डीलिंग इन द लिक्विड स्टेट. हम किस में डील करेंगे बेटा? लिक्विड स्टेट. जो आपकी मोल्टन स्टेट होती है वो भी लिक्विड होती है, जो सॉल्यूशन आप बनाओगे एक्वस वो भी लिक्विड होता है. तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है? आयंस आर हैविंग यू कैन से स्पेस टू मूव. आयन मूव कर सकते हैं और अगर वो मूव करेंगे देन दे विल शो द कंडक्टेंस. सो आई विल राइट इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज the ions are free to move. That is a main difference that you have to know. Clear to all of you? After that, the next property that we will discuss, that is regarding space isomerism or stereoisomerism, that we have to discuss. Clear to all of you? So in the 10th class बेटा आपने स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया होगा. मीन जो कंपाउंड है उसका 3D में जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. बट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन होनी चाहिए दैट
जो आपका कंपाउंड है इट शुड बी डायरेक्शनल इन नेचर। और जबकि हमें पता है जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड बीइंग नॉन डायरेक्शनल, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इन द सेंस ईच पॉजिटिव आयन कैन अट्रैक्ट एनी नेगेटिव आयन एंड ईच नेगेटिव आयन कैन अट्रैक्ट एनी पॉजिटिव आयन, देयरफॉर वी कैन से दे डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म। सो जो 10th क्लास में आपने थोड़ा बहुत स्टडी कर रखा और 11th में हम काफ़ी डिटेल में करेंगे स्पेस आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग, तो उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि आपका जो कंपाउंड में बॉन्ड है वो डायरेक्शन होना चाहिए। बट आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं है, देयरफॉर ये आपका स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द रिएक्शंस, सो आयनिक कंपाउंड दे शो फास्ट आयोनिक रिएक्शंस। आयनिक कंपाउंड फास्ट आयोनिक रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आई विल गिव यू द एग्जांपल। इफ आई विल टेक NaCl प्लस AgNO3, जस्ट सी आउट। यहाँ पर बेटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। सो हमारे पास एक तरीके से रिएक्शन मिक्सचर में वी आर हैविंग Na पॉजिटिव आयन, Cl negative ion, Ag positive ion and NO3 negative ion. So you know that oppositely charged ion they will attract each other with a very high force of attraction. So बहुत जल्दी क्या होगा, Na positive ion attract करेगा NO3 negative को और उतने ही फास्टली Ag positive ion attract करेगा Cl negative को. So I will give you we will get AgCl plus NaNO3. So basically क्योंकि फास्ट क्यों है रिएक्शन, क्योंकि जो आयंस है वो एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। इसका रीजन वाई दीज आर फास्ट, बिकॉज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी फास्ट with strong इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आयनिक रिएक्शन किस लिए? बिकॉज इनकी रिएक्शन में मेनली आयंस आर इन्वॉल्व्ड. These ions, they will oppositely charged ions attract each other. So student, this we have done the, you can say the properties of ionic compound. Very important properties. इनकी nature क्या होती है? They show the isomorphism. Then they will having the crystalline state, high melting and boiling point due to strong electrostatic force. Then we have discussed these are soluble in polar solvent. Because polar solvent have the ability to decrease the force of attraction between the positive and negative ion. That tendency is said to be the dielectric constant, and water is having a high dielectric constant. So then we have discussed they show the fast ionic reactions, they do not show space isomerism. So all these are the important properties of ionic compound जो particularly 2 या 3 चीज़ों पर based है. Number 1, strong electrostatic force of attraction. Number 2, non-directional nature of ionic bond पर ये based है. और third one that they are having, you can say, charged ions which are having strong forces. Clear to all of you? So ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है. These are the very important properties. So that's all about the properties of ionic compounds.